Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to explain you the remaining portions of the chapter 2 history, socialism in Europe and the Russian revolutions. So dear students, first of all, I would like to give a quick recaps to all of you in order to make your concepts clear. The topics which we will cover in this chapter is the age of social change, the Russian revolutions, the February revolutions in Petrograd, the revolutions of October 1917, and the Civil War making a socialist society, Stalin and the collective formings and global influence. So let's start. Dear students, first of all, I have explained to all of you in the previous video lectures that the age of social change, the French revolutions opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रांसीसी क्रांति ने जो है सामाजिक संरचना के ढांचा में परिवर्तन लाने की जो संभावनाओं को जो है निर्मित किया. Not everyone in Europe, however, wanted complete transformations. यूरोप में सभी लोग पूर्णतः समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे. Some were conservatives, while others were liberals and radicals. कुछ लोग जो है कंजर्वेटिव रूढ़िवादी परंपरा के थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे, कुछ जो है उदारवादी थे और कुछ अमूल परिवर्तनवादी थे. Who were the conservatives? ये कंजर्वेटिव्स जो थे वे कौन थे? The peoples who resisted change were the conservatives. वे लोग जो समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन या बदलाव नहीं लाना चाहते थे वे कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी थे. But after the revolutions, they started accepting change provided it was slow and had links and respected the past. लेकिन क्रांति के बाद उन्होंने भी समाज में कुछ परिवर्तन को लाने की जरूरत को महसूस किया, पर उनका ऐसा मानना था कि ये परिवर्तन धीमे धीमे होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, हमें अपने अतीत का भी सम्मान करना चाहिए, अतीत को भी महत्व देना चाहिए. Who were liberals? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उदारवादी जो थे वे क्या थे? How they were different from the conservatives and the radicals? So dear students, liberals were the people who wanted the nations which tolerated all religions. Liberals यानी उदारवादी वे लोग थे जो कि ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को जो है बराबर सम्मान मिले. They argued for an elected parliamentary government subject to the laws interpreted by the well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. वे एक जनप्रतिनिधित्व के लिए सरकार जो चाहते थे जो कि सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा जो चुनी गई हो और जो कि बाह्य कर्मचारियों और जो शासकों के प्रभाव से जो मुक्त हो. But they were not Democrats, but the liberals were not completely Democrats. They do not want everyone to have a right to vote. That means they do not believe in universal adult franchising. Means every citizens have a right to vote, and they were also against of the women voting rights. They do not want the women have a voting rights. वो ये भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का जो अधिकार प्राप्त हो. वे चाहते थे केवल निजी संपत्ति वाले जो है को वोट देने का जो अधिकार हो. तो ये कुछ जो है उनकी जो है भिन्नताएं थी. Now let's know about the radicals. Radicals कौन थे? आमूल परिवर्तनवादी जो थे वे radicals थे. They wanted a nation in which government was based on the majority of country populations. जो रेडिकल्स थे, आमूल परिवर्तनवादी थे, वे इस तरह का जो राष्ट्र चाहते थे जिसे ज़्यादा से ज़्यादा जनमत और बहुमत जो है प्राप्त हो. They disliked concentrations of property in the hands of few, not existence of private property. वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे और कुछ लोगों के हाथों में जो निजी संपत्ति के केंद्रीकरण को वो पसंद नहीं करते थे. Now let's know about the industrial society and social change. in Russia. Dear students, this was the time of economic
एंड सोशल चेंज, यह वह समय था जब आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत बड़ा जो बदलाव और परिवर्तन जो है आ रहा था पूरे यूरोप में। When men, women and children pushed into the factories for low wages, महिला, पुरुष, बच्चे सभी जो है कल कारखानों में जो है आ गए। Most of the factory owners were often liberals and radicals, and they felt that workers' efforts must be encouraged. बहुत सारे जो फैक्ट्री ओनर्स थे यानी कि जो मिल मालिक लोग थे वे मुख्य रूप से जो है लाइबरल सुधारवादी और अमूल परिवर्तनवादी थे। उन्होंने महसूस किया कि जो वर्कर एफर्ट्स है यानी कि मजदूरों का जो प्रयास है, जो प्रगतिशीलता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आगमन कैसे हुआ? लेट्स नो लेट यू नो। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, दे वेयर अगेंस्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे निजी संपत्ति के अगेंस्ट में थे, विरोध में थे। दे हैड ए डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर, भविष्य को लेके उनके अलग अलग अपने दृष्टिकोण थे। सम बिलीव्स इन कोऑपरेटिव, जो है परस्पर सहयोग, सबका साथ सबका विकास, इसमें जो है विश्वास करने वाले थे। बिलीव्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने अपना जो है विचार दिया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यानी कि औद्योगिक जो समाज है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों का जो है समाज है, एंड दे आर मच मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन प्रॉफिट्स, दे डू नॉट थिंक अबाउट द पीपल्स हु मेक देयर प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। तो वे जो पूंजीपति होते हैं अधिकतर से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लाभ के और अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहते हैं। वे उन मेहनतकश जो है मजदूरों या श्रमिकों के बारे में नहीं सोचते हैं जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद का समर्थन। डियर स्टूडेंट्स, बाय द 1817 1870 के दशक तक सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, यानी 1870 आते आते सोशलिस्ट आइडिया जो समाजवादी जो विचार है पूरी तरीके से जो यूरोप में फैल गया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। जर्मनी और इंग्लैंड में जो वर्कर थे यानी जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वे मजदूर संगठन बनाने लगे फॉर फाइटिंग फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, और अच्छे जीवन स्तर और काम के जो शर्तों को जो लेके उन्होंने जो है काफ़ी जो है संघर्ष किया। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर दैट द वर्किंग आवर्स वाज टू लॉन्ग बट द वर्कर्स वे आर नॉट paid in comparison of the hours or efforts they gave to the company. Got it? तो they were paid very low wages, उनको sometimes no wages, बहुत कम मजदूरी मिलती थी, कभी मिलती ही नहीं थी, बहुत कम मिलती थी। अब हम लोग जो है जानते हैं सो द रशियन रिवोल्यूशंस, रसिया में जो क्रांति हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 1940 1914 में निकोलस सेकेंड रूल द रशियन एम्पायर। 1914 में निकोलस द्वितीय का रसिया के जो साम्राज्य पे जो है शासन था। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरी अराउंड द मॉस्को, कैरेंटिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया ई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। So the Russian Empire included territory around Moscow, Carinthia, Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. Now, economy and the society during the Russian Empire, रशियन साम्राज्य में जो है वहाँ का आर्थिक और जो सामाजिक जो स्थिति थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था और समाज। Dear students, about 85% of the Russian empires
पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर्स। जो रसिया की जो आबादी थी उसका 85% जो लोग थे वे अपनी जीविका कृषि से यानी खेती बाड़ी से ही चलाते थे। दैट मीन्स यानी कि अधिकतर लोग जो है अपनी जीविका के लिए खेती बाड़ी पर यानी कृषि पर निर्भर थे। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, the vast majority of the Russia's peoples were agriculturists. About 85% of the Russian Empire's populations earned their living from agriculture। 85% जो है रसिया की जो आबादी थी वे अपनी जीविका जो है खेती से ही कृषि से ही चलाती थी। This proportions was higher than in most European countries। और ये जो अनुपात था, ये जो प्रतिशत था यूरोप में, तो ये बहुत ही जो है ज़्यादा था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पे यदि हम ले, फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शंस वाज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में खेती करने वाले जो लोग थे उनकी आबादी जो थी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द एम्पायर कल्टीवेटर प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट। In the empire, the cultivators produced for the markets and as well as for their own needs, यानी कि बाजार के लिए भी उत्पादन करते थे अपनी जरूरतों के साथ साथ। एंड रसिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन। और रसिया जो है अनाज का मुख्य जो है निर्यातक था। गॉट इट? क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। उद्योग बहुत कम थे। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज फॉर्म्ड इन पॉकेट्स। उद्योग बहुत कम थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सबसे ज़्यादा और यूँ कहें तो प्रमुख औद्योगिक जो इलाके थे वो पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख रूप से था। तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। सो डियर स्टूडेंट्स, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को were the prominent industrial areas. Craftsmen undertook much of the productions, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in 1890। बहुत सारे जो फैक्ट्री जो सेटअप किए गए 1890 के दशक में। सन 1890 में when रसिया रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड, जब रसिया का जो रेलवे नेटवर्क जो है तेजी से जो है फैला। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है विदेशी निवेश जो है बढ़ा। कोल प्रोडक्शंस डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रबल्ड। तो कोयले का उत्पादन दुगुना और आयरन और स्टील यानी कि लौह और इस्पात का उत्पादन जो है 4 गुना जो है बढ़ गया। बाई द 90s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। और 19वीं सदी आते आते यानी कि सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों के मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स could not prevent rules being broken. In craft units and a small workshop, the working day was sometimes 50 hours compared with 10 or 12 hours in factories. Accommodations varied from rooms to dormitories. Okay, dear students. So about 85% of the Russian Empire's populations are there living from agriculture. The industry was limited in number. Workers were divided into groups, but they did
unite to strike work when they were dissatisfied. Peasants had no respect for nobility. Very unlike the French peasant, Russian peasants were the only peasants community which pulled their land and commune divided. Now we will discuss about the socialism in Europe. अब हम socialism in socialism in Russia, यानी कि रसिया में जो साम्राज्यवाद का कैसे जो विस्तार, रसिया में समाजवाद की विचारधारा कैसे जो है फैला और कैसे आया समाजवाद. Let's know about it. All the political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 के पहले जितने भी जो राजनीतिक दल थे यानी पॉलिटिकल पार्टीज थे वे क्या थे, इलीगल थे, गैर कानूनी थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया. तो जो समाजवादी जो विचारधारा हुई तो 1914 के पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी. मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था. सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था. इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे. So dear students, all the political parties were illegal in Russia before 1940. The Russian Social Democratic Workers Party was founded in the year 1898 by socialists who respected Marx's idea. However, because of the government policy, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of the revolutions. तो प्यारे बच्चों, कुछ रूसी समाजवादियों को ऐसा लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं. इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे. वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा. 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे. सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया. इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए. किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था. उसका क्या कारण था? लेट्स नो अबाउट इट, दैट व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट. डियर स्टूडेंट्स, some Russian socialists felt that Russian peasant customs of dividing land periodically made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of the revolutions. And Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. This party struggled for peasant rights and demand that land belonging to the nobles be transferred to peasants.
Social Democrats disagreed with the socialist revolutionists about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and other rich. Some worked as a laborers while others were capitalists who employed workers. Given these differentiations within them, they could not all be the part of socialist movement. The party was divided over the strategy of organizations. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, Vladimir Lenin, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Other Mensheviks thought that the party should be open to all as in Germany. प्यारे बच्चों, सामाजिक जो लोकतंत्रवादी थे, ये जो खेमा था समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विरोधों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर इसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेन्शेविक का मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। Now we will discuss about turbulent time, the 1905 revolutions। अब हम जो है उथल-पुथल का समय 1905 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस क्या था? एक निरंकुश राजशाही था। रसिया वॉज एन एट्रोकेसी। एट्रोकेसी मतलब क्या होता है? राजशाही, निरंकुश तंत्र होता है, राजतंत्र होता है, निरंकुश तंत्र होता है, डिक्टेटरशिप यू कैन से दैट। सो अनलाइक द अदर यूरोपियन रूलर्स, अन्य जो यूरोपीय जो शासक थे, जो उनके विपरीत, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। तो डियर स्टूडेंट्स, रसिया was an autocracy unlike other European rulers। Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament। Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs together with the Social Democrats and Socialist Revolutionary। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में यानी कि
समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला। So dear students, liberal in Russia comparison to end this state of affairs together with the social democrats and social revolutionary. They worked with the peasants and workers during the revolutions of 95 to demand constitutions. They were supported in the empires by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by Jaddids who wanted modernized Islam to lead their societies. The year 1994 was particularly bad one for the Russian workers. जो 1904 का जो समय था तो रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। So dear students, the year 1904 was very bad, or particularly bad for the workers of Russia. Price of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The memberships of the workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian workers, which had been formed in 1904, were dismissed at Putilov Iron Works. There was a call for industrial actions. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working hours of working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working conditions. When the processes of the workers led by the Father Gapons reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। इसी दौरान जब पादरी गैपेन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। That's all. Thank you for listening me. Thank you for watching the video. More we will discuss in the next video lectures. Welcome and have a great day to all of you. Wish you all the best for your next examination.